So we will discuss the fourth phase now, fourth phase of public administration. So we saw first the politics administration dichotomy, then we saw the principles of administration, how they got evolved, and in the third phase, everybody started questioning both of this basis on which public administration was set up. That is, this dichotomy is not acceptable, neither are the principles. Now we'll see what happened in the fourth phase, which is basically crisis of identity from 1948 to 1970. In this phase, basically what happened was, as I told you, जिस बुनियाद पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग डिसिप्लिन डिक्लेयर किया गया, उसी को एक्सेप्टेंस से रिजेक्शन में कन्वर्ट हो गया कि भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है. So now what the situation happened in this phase was, a lot of people started going back to pol science. Pol science की तरफ वापस जाने लगे बहुत सारे लोग. So that was कि लोगों को लगने लगा कि ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा. So let's see what happened. The discipline was in a quandary and suffered from the crisis of identity due to the abandonment of politics administration dichotomy and the principles of public administration. So the scholars of PubAd reacted to this crisis by re-establishing the linkages of public administration with political science and with management. See, because the theories which were developed in the second phase, that is principles of administration, majorly those principles were based on the studies of management, because the main emphasis was efficiency. So what did public administration scholars do? They picked up the theories of management and they tried to apply it on administration. एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ऐसे अलग से स्पेशल कोई बहुत कम लोग स्टडी कर रहे थे. जो जिन लोगों का हमने बात की, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बाय साइमन, or we saw about scientific management concept by Taylor. So mostly that was with respect to management. And that is the reason why in the third phase there was a crisis, that you're only talking about efficiency, you're only talking about economy, but what about people? कि exactly जो लोगों को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप सिर्फ पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हो, फायदा करवाने की कोशिश कर रहे हो. मैनेजमेंट के लिए ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे चलेगा? So what happened in this phase? वो फिर से पॉल साइंस और मैनेजमेंट को वही चीजें फिर से लिंक करने लग गए, because there was no other option. People were not accepting the basic principles of public administration. All right. Speaking in terms of pol science, it can be said that most of the writings of public administration in the 50s spoke of the field as an emphasis and area of interest, or even as a synonym of pol science. कि 50s में 60s में सब जन public administration को political science का एक synonym समझने लगे कि सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है. There is not a lot of difference between both the discipline. John Goss, for example, in his famous article Trends in the Theory of Public Administration 1950, observed that a theory of PubAd means in our time a theory of politics also. However, they were not liked and encouraged by political scientists. पंगा चल रहा है दोनों के बीच में, एक तरफ political scientists और एक तरफ public administrators या those people who are trying to write theories on public administration. And because in the 50s there was a time where politics and administration dichotomy was rejected, and a lot of theories which were written in public administration, a lot of them were not accepted as special theories, distinctive theories than pol science. सबको लगता था कि पॉलिटिक्स के बारे में लिख रहे, why are you claiming it to be a theory relating to public administration? वो बोल रहे थे ये तो पॉल साइंस ही है, आप अलग क्या बोल रहे हो? So that time, in the times of John Goss in the 1950s, it was considered that any theory which was written in public administration accepts politics. So basically it's pol science. तो इससे अलग से कोई नहीं, इसमें अलग कोई चीज है नहीं. During this period, two developments took place: the growing use of the case study method and the rise and fall of comparative and development administration. Case study method मतलब you basically take up certain administrative systems of countries. Case study of Ghana, case study of Zambia, case study of India, case study of France, case study of Germany. कि एक specific country के administrative system को आप study कर रहे हैं, और उस सिस्टम को पढ़ के स्टडी करके आप थ्योरी लिखने की कोशिश कर रहे हो, जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो. तो वैसे बहुत सारे देशों का केस स्टडी मेथड को अप्लाई करना किया, और इसके पहले जो कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की जो कंसेप्ट थी वो धीरे धीरे कम हो गई. कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन में कंपैरिजन बहुत होता था, जो वुड्रो विल्सन के जमाने से होते आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वुड्रो विल्सन ने यूरोपियन कंट्रीज के साथ कंपैरिजन किया था कि वहां पे कम है एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफियरेंस पॉलिटिक्स में. तो वो जो कंपैरेटिव एनालिसिस का जो ट्रेंड था वो वुड्रो विल्सन से चलता आ रहा है. दैट वाज द वेरी बेसिस वेयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिकम अ डिफरेंट डिसिप्लिन.
So that's why this trend kept on till 1950s, but 50s के बाद धीरे धीरे ये ट्रेंड कम होने लगे कंपैरिजन बिटवीन टू कंट्रीज, बिकॉज मैंने बताया दोनों देश अलग हैं, कल्चर अलग है, लोग अलग हैं, काम करने का तरीका अलग है. मैंने एग्जांपल दिया था इवन इन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन पोलैंड, वहां पे और इंडियन कल्चर ऑफ वर्क इज वेरी डिफरेंट. अगर आप वहां पे पोलैंड में अगर आप शाम को 5 बजे के बाद अगर किसी एम्प्लॉय को फोन करते हो, दैट एम्प्लॉय कैन गो टू द कोर्ट एंड सेड इज हैरेसिंग माय एम्प्लॉयर. अगर आप यहाँ पे ऐसा करोगे तो पहली बात तो आपकी नौकरी जाएगी. प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों में यही सिचुएशन है. पब्लिक सेक्टर में एटलीस्ट जॉब सिक्योरिटी होती है तो कोई आपको कुछ कर नहीं सकता, इसके लिए सब लोग बोलते हैं कि जेएमएफसी करते हैं, यूपीसी करते हैं. प्राइवेट सेक्टर में इशू ऐसा होता है कि अब जैसे मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैंने किसी को जॉब पे रखा है, मैंने बोला उसको ज्वाइनिंग के समय 9 to 5 का जॉब है, बट कभी कभी टाइम एक्सटेंड हो, कभी कभी नहीं बहुत बार होता है, 7-8 तो बजते ही बजते हैं. आजकल का ये ट्रेंड हो गया है. और जो रुकता है 11-11 बजे तक उसका ही पहले प्रमोशन होता है. अगर ये पोलैंड में हुआ, दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी अ वायलेशन ऑफ लेबर राइट्स. इतना बड़ा कल्चरल डिफरेंस है. इवन इफ यू वांट टू लेट गो अ पर्सन, मतलब अगर किसको निकालना पड़ता है तो उसको आधी सैलरी देनी पड़ती है, देन ओनली यू कैन लेट गो ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे तो नोटिस भी नहीं भेजते, आपकी जरूरत नहीं, मेल आ जाएगा, बात खत्म, छोड़ो. जैसे जॉब छोड़ते समय 1 महीने कम से कम नोटिस पीरियड पे रहना पड़ता है ना, अगर आपको जॉब छोड़ना है तो 1 महीने का नोटिस पीरियड होता है. लेकिन दूसरी कंपनी इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहती है, मतलब दैट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस. कैसे? अगर मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, 1 महीने का मेरा नोटिस पीरियड है और ज्वाइनिंग के समय इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहिए, हिपोक्रेसी. सो यहाँ पे ये सिचुएशन है, हर कंट्री का कल्चर अलग होता है. तो ये कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन कम हो गया. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के 2 तरीके होते हैं. अब ये थोड़ा दिस इज मोर विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, दिस इज डायरेक्टली आपको नहीं आएगा क्वेश्चन, मैं समझा रहा हूँ कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के 2 तरीके होते हैं. पहला तो एडमिनिस्ट्रेशन में ही डेवलपमेंट करना है ताकि हम आपके फंक्शनिंग में बेहतरी आए, कि यू आर ट्राइंग टू डेवलप द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन योर कंट्री. जैसे हम इम्प्रूव कर रहे हैं. जब आजादी के बाद जब हम ब्यूरोक्रेसी हमने एस्टेब्लिश की, तो दैट टाइम व्हाट हैपेंड वाज वी वर हैविंग दिस, इवन टुडे वी हैव दैट कॉलोनियल इन्फ्लुएंस. माय बाप करके ट्रीट करते हैं. यू आर पब्लिक सर्वेंट. पब्लिक आपकी सर्वेंट नहीं है, जो कई कई सालों तक अभी डायरेक्टली कोई कमिश्नर कलेक्टर डायरेक्ट मुंह पे पूछते हैं, आप इस ज्यूरिसडिक्शन आपकी, आप क्या कर रहे हो, काम क्यों नहीं किया. अभी सुशांत सिंह राजपूत की केस देख लो, बिहार का डीजी चिल्ला रहा है, यहाँ का मुंबई पुलिस कमिश्नर को मीडिया के आगे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई डरता नहीं अभी. नोबडी इज स्कैर्ड ऑफ एनीबडी. फटाफट पूछते हैं. उल्टा जितना आप हायर पोजीशन पे जाओगे उतनी यू आर आंसरेबल, यू आर आंसरेबल. तब आंसरेबल नहीं था कोई. तो हम चेंज कर रहे हैं. पहले ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वाज इवन, जैसे मैंने बताया आज अभी डोरमेंट हो गया, बट है. पर हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया, हमने राइट टू सर्विस एक्ट पास किया, हमने लोकपाल एक्ट पास किया, हमने ऐसे बहुत सारे कायदे पास किए. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1986 पास किया, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट किया, क्योंकि ह्यूमन राइट्स काफी वायलेट करते हैं कई बार. गवर्नमेंट जब अपना पावर मिसयूज करता है, अब्यूज करता है, तो हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं. तो हमने कायदे क्यों इंप्लीमेंट किए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरी हो. दैट इज वी आर ट्राइंग टू डेवलप द एडमिनिस्ट्रेशन. अभी पुलिस ऑफिशियल्स को ह्यूमन राइट्स में ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आप एक सिविलियन फोर्स हो, यू आर नॉट आर्म्ड फोर्स. बहुत फर्क है सिविलियन फोर्स एंड आर्म्ड फोर्स. आर्म्ड फोर्सेस दे शूट टू किल, पुलिस वाले दे डोंट शूट टू किल. बट हो क्या रहा है, वो मेंटालिटी अभी तक चेंज नहीं हुई ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम से, मारो. सो ये डेवलपमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन. सेकेंड थिंग, एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू सोसाइटी में डेवलपमेंट करना, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, इसके थ्रू आप डेवलपमेंट कर. सो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट कर रहे हो विद इन द सिस्टम, या थ्रू दैट सिस्टम यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट इन द सोसाइटी. ये दो उसके पर्सपेक्टिव थे. बट अभी ज्यादातर उनका एम्फेसिस जो था वो केस स्टडी एनालिसिस पे ज्यादा चले, कि एक पर्टिकुलर, जैसे आप केस स्टडी जैसे लॉ में हम करते हैं, तो हम एक स्पेसिफिक केस को लेते हैं और उसको डिटेल में एनालाइज करते हैं, कौन से प्रोविजन थे, कौन से रेशियो क्या था जिसके बेसिस पे ये डिसीजन आया. तो एक केस को आप डिटेल में पढ़ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं. वही किसी कंट्री का सिस्टम देखना पड़ता है. ये ट्रेंड चालू हो गया इस दौरान, फोर्थ फेज में, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग, कैसे हम इस सब्जेक्ट को अस्तित्व इसका बनाए रखें, वरना ये खत्म हो जाता.
The emergence of the case study method reflected the response of PubAd to the behavioral revolution going on that time in social sciences. Not only PubAd, sociology, एंथ्रोपोलॉजी, हर सेक्टर में बिहेवियरल रिवोल्यूशन मतलब बिहेवियरल स्टडीज के बारे में डिस्कस करना चालू किया. ये एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर. बिहेवियरल स्टडी एक अलग स्टडी है. जैसे हर एक इंसान अलग होता है, उसका बैकग्राउंड अलग होता है. दो ट्विंस ब्रदर्स कैन आल्सो बी वेरी डिफरेंट इवन दो दे आर ब्रॉट अप टुगेदर, बट उनका नेचर, उनका स्वभाव बहुत अलग हो सकता है. जरूरी नहीं कि वो सेम ही बिहेव करे, सेम रिएक्ट करे, सेम टैलेंट्स उनमें हो. कभी कभी तो बहुत अलग होते हैं, सिमिलर नहीं होते. सो एक ट्रेंड चालू हो गया था नॉट ओनली इन PubAd, इन सोशल साइंसेस, कि हम थोड़ा सा वी शुड थिंक इट्स नॉट अ प्योर साइंस, इट्स अ सोशल साइंस वेयर यू आर स्टडीइंग ह्यूमंस. आप इंसानों के साथ आप डील कर रहे हैं, दे आर द बेनिफिशियरीज. ऑलराइट, तो हमारा ओरिएंटेशन जो है ना वो चेंज होना चाहिए टुवर्ड्स स्टडीइंग PubAd. So far as the rise of comparative and development administration is concerned, it may be pointed out that prior to the abandonment of the principles of administration, it was assumed that cultural factors did not make any difference in the administration. ये presumption गलत है कि cultural factors से कुछ फर्क नहीं पड़ता. कैसे फर्क नहीं पड़ता? अफगानिस्तान का तालिबान का कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, जापान का कल्चर अलग है. वहां पे जापान में अगर आप काम करते करते सो गए, if you slept when you were working, मतलब नींद आ गई आपको, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड साइन कि कितना काम कर रहा है, किसको नींद आ रही है. यहाँ पे अगर आप काम करते करते सो गए तो नेक्स्ट टाइम आपके हाथ में रेजिग्नेशन लेटर आ जाएगा, निकलो, सो रहे हो तुम काम करते समय. वहां पे उल्टा है, बिकॉज कल्चर अलग है. वहां का कल्चर बहुत अलग है. उसी जगह पे अगर यूरोप में जाओगे तो, या आप यूएसए में जाओगे तो लोग वहां पे काम के अलावा बात ही नहीं करते. वेरी वेरी फॉर्मल व्हेन दे आर इन द कंपनी. इंडिया में काम के अलावा सब चलता है, मस्त कंपनी में हो या किधर भी हो, दे आर वेरी फॉर्मल इन देयर अप्रोच इन वेस्टर्न कंट्रीज. हमारे यहाँ पे मिक्स है, खिचड़ी है. इसलिए कई मेरे फ्रेंड्स जब वहां जाते हैं तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज अरे यार किससे बात करें, कोई बात ही नहीं करता. सो ये कल्चरल चीजें इम्पैक्ट नहीं करती, गलत है. एडमिनिस्ट्रेशन पे कल्चरल चीजें ही इम्पैक्ट करती है सबसे ज्यादा. But later on, scholars like Robert Dahl and Waldo pointed out that cultural factors could make public administration on one part of the globe quite a different one on the other part. Cultural wise, हर एक समाज का administrative setup अलग होता ही. Okay. As a result of this revised thinking, the study of CPA, इसको shortcut comparative public administration में CPA भी कहते हैं, started in universities and colleges. तो ये comparative study धीरे-धीरे start हो गई थी because of to study this impact of culture. इम्पैक्ट ऑफ कल्चर, क्योंकि ओरिएंटेशन अलग है. अगर आप चाइना में अगर आप सडनली डेमोक्रेसी की बात करना चालू कर दोगे, सडनली अगर आप एंटी कम्युनिस्ट हो गए तो गए आपको गायब कर दिया जाएगा. ये फैक्ट है. हांगकांग का देख लीजिए आप, तिब्बत का देख लीजिए, ताइवान का देख लीजिए, यही हालत है कि दे वांट डेमोक्रेसी इन हांगकांग, वो होने नहीं दे रहे. और अगर है भी डेमोक्रेसी वहां पे, वो नाम के लिए, क्योंकि वहां के जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी से. दैट इज द प्रॉब्लम. कल्चर बहुत फर्क पड़ता है. However, the real impetus came in 1960s with when CPG, that is Comparative Administrative Group, was founded, which received liberal grants from Ford Foundation. The foundation's emphasis on the third world led to a semi-autonomous subfield of the comparative public administration called the development administration. Most of the work was done by RICS. अब इसमें जो RICS साहब थे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. कि जब ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस लोगों ने स्टार्ट किया, तब जाके फोर्ड फाउंडेशन करके द ऑर्गेनाइजेशन थी जो फंडिंग कर रही थी लोगों को, जिनको कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप व्हिच कंसिस्ट ऑफ स्कॉलर्स वेयर हु वर एक्चुअली कंडक्टिंग द कंपैरिजन, कंपैरेटिव स्टडीज जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे. इससे आगे जाके कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, आगे जाके डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन. एंड स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे 1950s में 60s में बहुत सारे देशों को आजादी मिली, उनमें से हम एक थे. तो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हम भी गिना करते थे, आज भी हम गिने जाते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, बिकॉज वी आर स्टिल नॉट दैट काइंड ऑफ डेवलप्ड कंट्री व्हिच इज एक्सपेक्टेड टू बी. हम डेवलपिंग है, बट हमें थर्ड वर्ल्ड ही माना जाता है. तो इन देशों में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हैं?
The reason for that is politics. The reason for that is why they are trying to say India is a developed country. The reason for that is WTO. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कैटेगराइजेशन किया गया है कंट्रीज का 3 कैटेगरीज में. एक होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज, दूसरे होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज एंड थर्ड होते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. दैट इज डिसाइडेड बाय जीडीपी. उस देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब उस कितना पैसा कमाते हैं, कितना डेप्ट में है. देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ये कैटेगराइजेशन किया गया. If you are developing countries, you have some perks, you have some relaxations. Simple example देता हूँ. TRIPS, trade related aspects of intellectual property rights, एक agreement which deals with international law with respect to patents, copyrights, in short intellectual property rights. But अगर आप developing country है, वही law आपको implement करने के लिए 10 साल दिए जाएंगे. पर अगर आप developed country है, तो सिर्फ 5 साल. अगर आप least developed countries है, आज भी वो टाइम एक्सटेंड किया जा रहा है, अभी भी 5-5 साल से एक्सटेंड किया जा रहा है. और ट्रिप्स कब एनफोर्समेंट में है? 1 जनवरी 1997. अभी 2022 चल रहा है, अभी भी एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं. उसके बाद हम जो डेवलपिंग देश हैं, वो अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर में सब्सिडीज दे सकते हैं. वी कैन गिव सब्सिडीज. बाहर के अगर कोई इंपोर्टेड गुड्स हमारे पास आते हैं तो उनके ऊपर हम कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लगा सकते हैं. तो अगर हम फ्री ट्रेड अगर आप बोलोगे तो आप फ्री ट्रेड का मतलब क्या है? देयर इज नो टैक्सेशन. मतलब अमेरिका का ये पेन है, अमेरिका का पेन 100 रुपए में, और इंडिया का ऐसा ही दिखने वाला पेन 90 रुपए में. आप कौन सा लोगे? अमेरिका वाला. 100 रुपए वाला, क्योंकि अमेरिका के पेन की क्वालिटी, उसका लुक्स, उसका ड्यूरेबिलिटी मच बेटर है. उनकी कंपनीज, उनकी इंडस्ट्रीज मच डेवलप्ड है. हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं. इसलिए वो बोल रहे हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि वो नहीं चाहते इंडिया को पर्क्स मिले. और हम बोल रहे हैं कि भाई हम तो गरीब हैं. फैक्ट है, क्योंकि अभी भी अगर आप पुणे मुंबई छोड़ दोगे, काय का डेवलप. अगर पुणे का ग्रामीण एरिया में भी अगर आप चले जाओगे, वहां पे नेटवर्क इश्यूज है. दैट इज अ रियलिटी. बिकॉज हम सिटीज में रहते हैं, हमें पता ही नहीं कि क्या क्या चल रहा है रूरल एरियाज में. इवन टुडे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया रिलाई ऑन एग्रीकल्चर. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आर इन रूरल एरियाज. अर्बनाइजेशन हो रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इन कंपैरिजन टू यूएस, यूरोप, हम आसपास भी नहीं है. हम आसपास में, इसीलिए वो बोल रहा है डेवलप्ड कंट्री. अच्छा लगने के लिए. हाँ, डेवलप्ड कंट्री अच्छा लगता है. बिकॉज देयर आर सम पीपल, जब इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है तो दे गेट एंग्री. दे गेट एंग्री. इट इज लाइक, यू नो, वो कास्ट वाइज आप किसी कास्ट बता रहे हो, ऐसा होता है कि बोलता है ना, तो कास्ट के नाम आप नाम नहीं ले सकते. स्पेसिफिकली यू आर बिलोंगिंग टू एससी एसटी, आप नाम नहीं ले सकते. इट्स अ क्राइम. सो इसीलिए उसके पीछे का लॉजिक ये है. ओके. रिक साहब ने इसमें बहुत काम किया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में. But CPA from its very origin emphasized upon theory building and to seek knowledge for the sake of knowledge. The purely scholarly thrust of CPA led to its downfall. So much so that in 1973 the CPG was disbanded. तो इन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ? ये these people were majorly focusing on theory building. थियरी बनाए जा रहे हैं, थियरी बना. अरे भाई प्रैक्टिकल तो बताओ. प्रैक्टिकली भी तो इम्प्लीमेंट करता आना चाहिए. सिर्फ थ्योरी बना दिया. अब जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ाते समय आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जा रही है, लेकिन कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे करते हैं ये कब बताओगे? तो इसीलिए फिर मूड कोर्ट्स होते हैं, इसीलिए कुछ क्लाइंट काउंसलिंग कॉम्पिटिशंस होते हैं, है ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले. फिर आपको बोला जाता है इंटर्नशिप करनी चाहिए. वो बात अलग है, इंटर्नशिप करते करते मेजरली आप सिर्फ फाइलिंग करते रह जाते हो, सीखने को बहुत कम मिलता है. बट वो सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ इस फॉर्म में मैंने इंटर्नशिप किया. आता तो कुछ है नहीं, बट होता है. कोई कोई बच्चे होते हैं जो जेन्युइनली सीख लेते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम दे डोंट नो व्हाट टू स्टडी एग्जैक्टली. तो इनका यही हुआ, सब फोकस थ्योरी पे था. प्रैक्टिकल बताओ कि कैसे इंप्लीमेंट करें. ठीक है, तो इसके वजह से सीपीए मतलब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डाउनफॉल हो गया. अनदर बड़ा झटका पकड़ के लिए. अरे यार ये भी गए, वो जो ग्रुप था वो भी डिसबैंड हो गया. क्या फंडिंग रुक गई. बिकॉज सक्सेस नहीं मिलेगा तो फंडिंग कौन क्यों करेगा. आप यू नीड जस्ट सिंपल. कोई भी बिजनेस हो, अगर आप वो बिजनेस अगर अच्छे अगर एकेडमी में अच्छे नहीं पढ़ाऊंगा, बच्चे नहीं देंगे, फिर छोड़ के चले जाएंगे बच्चे. यहाँ रजिस्ट्रेशन फी भर दी, उसके बाद भागो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. नेचुरल है. तो वही हुआ सीपीए के साथ. आप थ्योरी बनाए जा रहे हो, लेकिन सक्सेस रेट को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है आपकी थ्योरीज, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है. ऐसा है. Due to their second-class status in the discipline of pol science, some scholars of PubAd began to search for an alternative, and they found the same in management, which sometimes is called administrative science. मैनेजमेंट को कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, किसी तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन ही शब्द डालना चाहते थे,
और ये जैसे मैंने कहा बिकॉज अभी सीपीए भी सीपीजी भी डिसबैंड हो गया, सीपीए का डाउनफॉल हो गया, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का डाउनफॉल हो गया, थियरीज प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल नहीं थे, तो ये करे तो क्या करे? किसी कॉलेज में अप्लाई करूं कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाता हूँ, सर हम ये कोर्स प्रोवाइड नहीं करते, वी डोंट प्रोवाइड दैट कोर्स। तो ये करे तो क्या करे? देन द मेजॉरिटी ऑफ देम शिफ्टेड टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में चले गए और फिर वो बताने लगे कि मैनेजमेंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट, इट्स अ भेलपुरी। एमबीए को मैं भेलपुरी बोलता हूँ कि हर क्षेत्र से थोड़ा 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 उसमें ऐड किया गया कि वहां पे लेबर लॉ भी पढ़ाते हैं, पेटेंट्स भी पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स के बारे में भी बताते हैं, मैनेजमेंट सब कुछ, ये थोड़ा ये थोड़ा ये थोड़ा थोड़ा भेलपुरी बना के दे देते हैं कि ये एमबीए का कोर्स है, करो। ओके, सो बेसिकली दे वर ट्राइंग टू फाइंड एन अल्टरनेटिव, दे फाउंड द अल्टरनेटिव इन मैनेजमेंट। तो धीरे धीरे पबैड खत्म हो रहा था इस फेज में। दे आर्ग्यूड दैट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी or was or should be the overarching focus of public administration. A number of developments led to the selection of management with an emphasis on organizational theory as the paradigm of public administration. तो अभी धीरे धीरे इनका ये मानने लग गया कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह ट्रीट करना चाहिए, उसके रिलेटेड हमें थियरी बनानी चाहिए, एंड फोकस शुड बी ऑन मैनेजमेंट। ये पॉलिटिक्स एंड ऑल दिस छोड़ दो, focus on administration, focus on management of a particular organization. So it should be an organizational theory, not a administrative theory. Organization और administration में फर्क होता है। एक organization है, जरूरी नहीं कि इसके अंदर administration हो, management हो सकता है। ओके, तो नॉर्मली अगर हम इस इंस्टीट्यूट का कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में बैठे भवन में, वो पॉलिसी बना रहे हैं और हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन विद मैनेजमेंट। छोटे मोटे पॉलिसी डिसीजन ये लेते हैं कि एग्जाम का डेट क्या रखें, वो भी यूनिवर्सिटी के साथ कंसल्ट करना पड़ता है, इस तारीख को रखेंगे, कैसे ऑनलाइन रखना है, ऑफलाइन, एवरीथिंग हैज टू बी गिवन अ नोट बाय द यूनिवर्सिटी। वो जब, क्योंकि वो पॉलिसी फाइनलाइज कर रहे हैं, तो ये सिर्फ ये मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं। सो ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट, मैनेजमेंट इज डिफरेंट। जो सेकंड वीडियो है यूट्यूब पे, सेकंड लेक्चर, उसमें ये क्लियर डिमार्केशन मैंने समझाया है। 56 में important journal Administrative Science Quarterly was founded on the premise that the distinction between business and institutional administration is false and the administration is administration. ये private हो या public हो, business हो या government हो, administration is administration. ऐसा distinction मत कीजिए। Further, such works as James March and Herbert Simon's Organizations, Richard Syed and March, A Behavioral Theory of the Firm, March Handbook of Organizations, James Thompson's Organization in Action, gave solid theoretical reasons for choosing management as the paradigm of public administration. की जैसे शुरुआत जो हुई थी पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन की डाइकोटोमी की, अभी उनका सारा फोकस मैनेजमेंट पे चला गया। कैसे करके सब्जेक्ट को बचाएं, कैसे करके सब्जेक्ट को हम अस्तित्व इसका बनाए रखें। तो उन्होंने बोला कि चलिए अभी मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं। तो उनका ये मानना था वो मैनेजमेंट नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वो सब कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशनल थियरी बनाने लग गए और मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया। एज अ पैराडिम, मैनेजमेंट प्रोवाइड अ फोकस एंड नॉट अ लोकस, कि किस चीज पे फोकस करना है, लेकिन लोकस क्या है। इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ बता रहे हैं कि आपको इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, पर कहाँ पे फोकस पता है यहाँ पे, लेकिन वहां पे कहाँ पे कैसे, वो समझ में नहीं आ रहा है। कि मुझे हाँ मेरा फोकस है कि मुझे लॉ करना है, लेकिन कैसे? आई नो माई फोकस की यस आई मुझे ये करना है मेरे लाइफ में, लेकिन कैसे? ये प्रॉब्लम हो रहा था मैनेजमेंट से। सो इट ऑफर्ड टेक्निक्स, often highly sophisticated techniques that require expertise and specialization, but in what institutional settings that expertise should be applied? आप एक्सपर्टीज दे रहे हो मुझे, ओके मैं आपको बता रहा हूँ आंसर कैसे लिखते हैं, पर सर चेक तो कीजिए, हमने लिखा सर आंसर, बट इज इट राइट, इज इट रॉन्ग? और ये आंसर कहाँ लिखना है? क्रिमिनल पेपर में लिखना है क्या सिविल पेपर में लिखना है? जीएस पेपर 1 में लिखना है क्या जीएस पेपर 2 में? पबाड 1 या पबाड 2, सोचे 1 या कहाँ पे? टेक्निक अच्छी है सर, पढ़ाते अच्छा है, सब टेक्निक समझ में आ रही है, अप्लाई कैसे करें और कहाँ करें, ये नहीं समझा पा रहे। Regarding the relative impact of pol science and management on public administration, Nicholas Henry has observed that if pol science was profoundly influenced on the evolution and underlying values of public administration, management was less. जो पॉल साइंस का इम्पैक्ट पबाड पे ज्यादा है, मैनेजमेंट के ऊपर इतना नहीं।
पॉल साइंस का बहुत इम्पैक्ट रहा है पॉल, क्योंकि तो मैंने बोला आपको पॉल साइंस इज द मदर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, माँ है, बड़ा सब्जेक्ट, ये इसमें क्या छोटा सा बच्चा है। मैनेजमेंट पहले से ही एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन रहा है जहाँ पे सिर्फ टेक्निक्स डेवलप किए जाते हैं कि आप किस तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट करें, दैट्स इट। दे डोंट केयर इन विच सर्कमस्टांसेस, व्हाट कल्चर, डजंट मैटर। आप जाइए प्राइवेट सेक्टर में, आप जब जॉब करेंगे तो डोंट मैटर कि आप कहाँ से आते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका क्या सिलेबस है, आपका क्या स्कोर है, आपने कितने मार्क्स लिए थे, ये काम है, चाय लेके आ, ये फाइलिंग करके दे, करना पड़ता है, ओके। बट इन मेनी वेज द इम्पैक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑन पबैड वाज आल्सो मोर पॉजिटिव। मैनेजमेंट का इम्पैक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे पॉजिटिव रहा, लेकिन आज भी अगर आप देखें हमारा सरकार जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बिलीव करता है। जैसे मुंबई की जो मोनो रेल है वो रिलायंस के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करके वो कंस्ट्रक्शन किया। अभी अगर आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखते हैं, रोड्स बांधा करते थे, कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जाते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का फायदा क्या है कि मैनेजमेंट आर गुड एट इम्प्लीमेंटेशन, बट गवर्नमेंट इज गुड एट फॉर्मुलेशन। पॉलिसी बनाना, कायदा बनाना कोई गवर्नमेंट से सीखे, पर इम्प्लीमेंट कैसे करना ये आप प्राइवेट सेक्टर से सीखें, क्योंकि उनमें इफिशियंसी है, मोटिवेशन है, भगाना भगाते हैं उनको, काम करो काम करो काम करो, दिन रात काम करवा के लेंगे आपसे। तो ये मैनेजमेंट का पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, बोथ बट इन बोथ द सिचुएशन its linkages either with pol science or management, the essential thrust was on one of public administration losing its identity. अरे फिर तुम मैनेजमेंट का इम्पैक्ट हो रहा है, पॉल साइंस का, तुम क्या हो? मैनेजमेंट आपके थियरीज आप इस्तेमाल कर रहे हो, पॉल साइंस की थियरीज आप इस्तेमाल कर रहे हो, तुम क्या हो? तुम्हारी कौन सी थियरी अलग से? यही हुआ ना, फिर से क्राइसिस आ गई। आप इनके भरोसे बैठे हो, मैनेजमेंट और पॉल साइंस, खुद का क्या? That is why this phase is known as the period of identity of crisis for the discipline of PubAd, क्योंकि आप मैनेजमेंट की तरफ देख रहे हो, पॉल साइंस की तरफ देख नहीं सकते। कि अब जैसे पॉल साइंस की तरफ देखते तो वो लोग आउटराइटली आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप हमारे पास आओ ही मत, ये पॉलिटिक्स के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो आप तो बोल रहे हो अलग है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन। और मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं तो फिर वो अगेन अस्तित्व का क्वेश्चन कि फिर आप हमारे पास आ रहे हो तो आपका अलग डिसिप्लिन हम क्यों माने? दोनों तरफ से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, करें तो क्या करें? That led to the next phase, right? That which we'll do in the next session. ठीक है?